Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14 SFM. In that topic is mutual funds. So today we are going to solve illustration number 16. Soumya Funds has a fund name F3 fund. Okay, so ये एक म्यूचुअल फंड है, उसमें उसका नाम है F3 फंड. ओके, सो दिस इज़ द सौम्या फंड. उसमें क्या है, तो उसका जो फंड है उसका नाम है F3 फंड. अ फंड विच इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट फंड्स. ओके, सो इट इज़ लाइक अ स्कीम. ये जो F3 फंड है वो एक स्कीम है और उसके अंदर टोटल 3 फंड है, दैट इज़ X, Y एंड Z. ओके, सो बेसिकली हम लोग को क्या कंसिडर करना है कि 3 फंड्स है. ओके, सो एक्स वाई जेड ये मिला के एक टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा. ओके, सो दीज 3 फंड्स विल गिव अस अ टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो दिस टोटल इन्वेस्टमेंट ओके इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. टोटल जो इन्वेस्टमेंट है अलग फंड्स में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है. ओके, सो दिस F3 fund, it is collectively called as portfolio. Okay, total investment is portfolio. So these are the fund name. After that, value invested. Okay, so this is the amount of investment, then return, that is expected or else actual return for this particular funds. After that, standard deviation is given for the particular fund. Okay, correlation between the funds are as follows. So XY correlation is this much, then XZ correlation is this much and YZ correlation is this much. I hope आप लोग ने स्कूल में किया हुआ होगा correlation, वो याद हुआ होगा आपको. Okay, so correlation is given for each of them. After that, if the risk free return, okay, so this is RF, risk free return यानी कि RF हम लोग जिसको बोलते हैं वो. So risk free return is 5% and the return on Nifty, so Nifty, Sensex, all these things are market. So this is the RM, return on Nifty. It means it is return on market portfolio. Okay, so return on Nifty it is RM. So this is RM 17% and with the standard deviation is 3%. So this is the standard deviation of market. So this is standard deviation of market. As set on the Sharpe index यानी कि Sharpe ratio. In the last video we have learned the formula of Sharpe ratio, that is for market also and that is for portfolio also. So we need a Sharpe ratio for F3 fund. It means this is portfolio. Okay, so F3 fund is a portfolio and evaluate its a performance. So basically we have to find out the Sharpe ratio for portfolio also and market also. After that we will just compare that and we'll give conclusion that which is better one. Okay, so let's start. For Sharpe ratio, which data we needed. Okay, so let's check. See, for Sharpe ratio, if we have to calculate for market, then Sharpe ratio is equal to RM. Okay, so we are having RM, that is return on Nifty, that is RM 17%. After that, RF is also given, that is 5%, and standard deviation of market is given. So standard deviation of market, so we can easily find out the Sharpe ratio of the market, but they have specifically told that we need to calculate this F3, that is पोर्टफोलियो इसका शार्प रेशियो पोर्टफोलियो का. ओके, सो मार्केट का तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि जो भी डेटा चाहिए वो सब हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम किसका है, पोर्टफोलियो का है. ठीक है, सो पोर्टफोलियो का करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए. सी ये क्या है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. ओके, सो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस RF तो सब लोग का सेम ही रहेगा, दोनों का भी. ओके, सो RF तो सेम ही रहेगा, RF वी आर हैविंग. ओके, बट वी डोंट हैव डायरेक्टली रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. These are the returns but individual, that is फंड XYZ का इंडिविजुअल रिटर्न दिया हुआ है. हम लोग को इंडिविजुअल नहीं चाहिए, कलेक्टिव पोर्टफोलियो का चाहिए. ओके, इसको बोलेंगे हम लोग फंड का रिटर्न, but we want portfolio return. So we have to calculate. That's not a complicated part, we can easily find out. After that, this is the biggest problem because standard deviation फाइंड आउट करना है पोर्टफोलियो का. ओके, सो इसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है बिकॉज द स्टैंडर्ड डिविजन कैलकुलेशन इज गिवन इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर. सो वी विल लर्न दिस हियर ओनली बिकॉज विदाउट स्टैंडर्ड डिविजन वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस शार्प रेशियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल
सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ही फाइंड आउट करेंगे पोर्टफोलियो का, उसके बाद हम लोग मार्केट के ऊपर जाएंगे. ओके ओके. सो for calculation of Sharpe ratio of the portfolio, we need now return of portfolio, and we are having RF, and we want standard deviation of portfolio. So these two things we have to find out first, and then we can go for Sharpe ratio. Okay, so let's start. First of all, fund name as it is, which is given in the question. After that, investment, that is in crores, also given in the question, and I have taken total, that is 2.5 plus 6 plus 1.5, total is 10. Okay, so this is the total investment. It means portfolio value is 10. पोर्टफोलियो का मतलब नाम तो बड़ा लगता है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पोर्टफोलियो मतलब क्या है कि टोटल आप लोग ने मतलब अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो टोटल मिला के जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है. ओके, सो basically portfolio means you have invested in different funds, that total investment is called as portfolio. ठीक है. So now we are going to calculate the weight of investment. It means total investment is 10 and here we are investing 2.5. So simply we have to calculate the weight. It's very simple. First of all, 2.5 divided by this 10 divided by this 10. Okay, so it is 0.25. So 0.25. After that 6 divided by 10, it is 0.60 या फिर 0.6. Then 1.5 divided by 10, it is 0.15. and always जो weight रहता है उसका टोटल 1 आना चाहिए. So 0.25 plus 0.6 plus 0.15. ओके, हम लोग का 1 आ रहा है, so it's correct. So we got the weight of investment. After that we want return. ओके, अभी नॉर्मली हम लोग रिटर्न लेते थे और डायरेक्टली लेते थे बिकॉज उधर एक इन्वेस्टमेंट रहता था. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग ने शार्प रेशो कैलकुलेट करना चालू किया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में चिंतामणि फंड ये अकेला फंड था, इसी को हम लोग ने पोर्टफोलियो बोला बिकॉज उसमें डिफरेंट टाइप्स के फंड्स नहीं थे. चिंतामणि फंड अकेला था, इसके लिए हमने उसको पोर्टफोलियो बोला. लेकिन ये केस में क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा नहीं है, 3 फंड दिया हुआ है, सो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न नहीं ले सकते, इसके लिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है. ओके, सो in question number 15 there was a single fund, that is Chintamani fund, so we are calling it as a portfolio because other funds were not there, so only single fund was there, so it was a portfolio directly. But in this question, that is question number 16, there are 3 kinds of funds, so collectively we will call it as a portfolio. So directly हम लोग किसी एक को portfolio नहीं बोल सकते, so total को बोलना है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है. If there is only single fund, then not need to do all these things. Okay, so let's start. First of all, return. So return multiplied by weight करेंगे. See, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे करना है, रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय दिस इंडिविजुअल रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट. इसका मतलब टोटल 10 लाख हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, उसमें से मेरा जो एक्स वाला फंड है मुझे इतना रिटर्न देता है और उसका वेट है इतना. सो अकॉर्डिंगली हम लोग को कैलकुलेट करना है. इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर we will do continuously such kind of calculation. So 15.5 is the return of X fund multiplied by its weight. So इसका weight इतना है, so 3.875. Okay, after that 19.2 is the return of Y and its weight is 0.6, so 11.52. After that 12.8 is the return of Z multiplied by its weight is 0.15. Okay, it's a 1.92. Now we have to just take total, so we'll get the return of this portfolio. Okay, so 3.875 we are earning from X, 11.52 we are earning from Y, and 1.92 we are earning from Z. Okay, so 17.315. So finally we got RP, that is return of portfolio, RP. How we have calculated? Return percentage multiplied by weight.
Okay, basically this format is from portfolio chapter. So we are writing the portfolio management formulas also if we are getting some formulas over here. Okay, so इधर कुछ formula मिल रहा है तो हम लोग ये भी नोट डाउन करके रखेंगे ताकि जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे तो हम लोग को अगेन से लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर फाइंड आउट करना है और बहुत सारे फंड्स है तो वो केस में हम लोग को हर एक का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट करना पड़ेगा. ओके, सो टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन 2-3 funds are given, in that case we have to take a return, it's a particular return of that fund, okay, multiplied by its a weight. So we'll get the RP, that is the return of portfolio. Okay, after that अभी आफ्टर दैट हमारे पास क्या चाहिए. अभी हम लोग को आरपी तो मिल गया है, ये आरपी है. उसके बाद सी एवरीथिंग इज इन परसेंट, सो ये परसेंट है, आरपी है. उसके बाद आरएफ है हमारे पास. अभी चाहिए हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो वो कैलकुलेट करने का इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला बहुत इजी है याद करने में. ओके, सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मीन्स इट इज़ अ रिस्क फैक्टर. ओके, सो मार्केट में अगर हम लोग ने वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया, पोर्टफोलियो में वो पर्टिकुलर, तो हम लोग को कितना रिस्क फैक्टर लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट में ही करना है इसका सब कुछ. सो अंडर रूट लेना है. उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस रहता है ना फंड्स का, वो करना रहता है. सी, दे हैव गिवन द कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई, देन एक्स जेड एंड देन वाई जेड. अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट द थिंग्स इनटू द फॉर्मूला. फॉर्मूला फ्लेक्सिबल होता है. इसका मतलब क्या है कि जो फंड्स है वो अगर एक्स वाई जेड की जगह पे ए बी सी आ गए तो हम लोग को ए बी सी करना पड़ेगा. ओके, अगर फंड्स 3 जगह पे 2 ही आ गए तो हम लोग को 2 के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखना है. ओके, सो वैसे टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बोला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट. उसके बाद पहले हम लोग को एक्स और वाई का कोरिलेशन दिया है. सो एक्स एंड वाई वी विल कंसिडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ओके, एंड वेट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर. ओके, प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई और वेट ऑफ वाई उसका स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जेड और ये वेट ऑफ जेड उसका स्क्वायर. मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें तीनों का तीनों फंड्स आएगा. उसका स्टैंडर्ड डिवीजन, उसका वेट, उसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, बीच में प्लस का मार्क, अगेन दूसरा वाला फंड, अगेन तीसरा वाला फंड, और हर एक का स्क्वायर रहेगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दैट इज फॉर ऑल द फंड्स. आफ्टर दैट प्लस, देन नाउ दैट एक्स एंड वाई वी विल राइट. ओके, सो फर्स्ट लाइन के बाद जो भी कॉम्बिनेशन हमको दिया है कोरिलेशन का, वैसे टाइप का हम लोग को लिखना पड़ेगा. ओके, सो याद रखने के लिए क्या करना है, यही देखना है. ओके, इसमें ये जो 2 है स्क्वायर वाला वो हम लोग नीचे लाएंगे. सो 2. ओके, देन एज इट इज़. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स. आफ्टर दैट ओके, ये प्लस का मार्क हट जाएगा. ओके, ये आएगा, जो भी है वो वैसे के वैसा आ जाएगा. ओके, इसका भी स्क्वायर जाएगा, इसका भी स्क्वायर जाएगा. मतलब नॉर्मल ये जो ब्रैकेट है वो दोनों वैसे के वैसा आएगा. ओके, बचा कौन है इधर, 2. वो किधर से आया, ऐसे हम लोग को ध्यान में कैसे रखना है कि ये ऊपर का जो स्क्वायर वाला है वो नीचे लिखना है, ये हम लोग को रिमेंबर करना है. ओके, सो आफ्टर दैट 2 आ गया, फिर ये है जैसा है वैसा ही कॉपी किया, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन प्लस का मार्क. आफ्टर दैट अगेन सेम थिंग विल कंटिन्यू. सो 2 आ गया. उसके बाद हम लोग को कॉम्बिनेशन दिया है कोरिलेशन में, एक्स और वाई का हो गया, एक्स और जेड का दिया हुआ है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड और वेट ऑफ जेड. ओके, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ एक्स जेड, देन प्लस का मार्क, देन 2. और अभी बचा कौन है, y और z का कोरिलेशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और वेट ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z और वेट ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ y z. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ये जस्ट मैंने ट्रिक बताया कि कैसे फॉर्मूला याद करना है. वही फॉर्मूला हम लोग को बार बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करना है. एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो वी आर जस्ट मेकिंग लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट वुड बी ईजी फॉर रिवाइजिंग बिफोर द एग्जाम. सो दैट्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज दिस मच. ओके, सो मैंने कॉम्बिनेशन कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, सब कुछ दिया हुआ है.
Okay, so this is the formula for standard deviation of portfolio. Okay, now just we have to fill the values. Okay, but while filling the values please be careful. Okay, ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का, मैं इधर से ले लूँगी और जो वेट चाहिए, जो वेट है वो इधर मैंने लिखा हुआ है ना, वो वेट मैं ले लूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज गिवन, दैट इज 3.20. ओके, डोंट राइट परसेंटेज. ओके, मल्टीप्लाइड बाय वेट, वेट इज 0.25. ओके, का स्क्वायर बोला हुआ है, प्लस वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.50 मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट है 0.60 का स्क्वायर, प्लस z का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.50 मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट है 0.15 का स्क्वायर. ओके, देन प्लस का मार्क है, सो प्लस का मार्क. आफ्टर दैट ये 2 लिखना है और ये जो ब्रैकेट है वैसे के वैसे लिखना है. ओके, 0.25, इधर प्लस का मार्क नहीं है अभी. ओके, सो अभी y का चाहिए ना, सो y का ये ब्रैकेट है, सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6. ओके, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सी कोरिलेशन इधर दिया हुआ है एक्स और वाई का, दैट इज 0.30. ओके, सो हम लोग को करना है 0.30, उसके बाद प्लस का मार्क है. ठीक है, वैसे ही बाकी लोग का करना है. सो अभी x का ही चाहिए, सो x का 3.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 और अभी चाहिए हमको z का, सो z का इधर मिलेगा, सो 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ xz, कोरिलेशन ऑफ xz इज 0.50. so 0.50, देन प्लस का मार्क, देन अगेन 2, देन y और z का, यानी कि y और z का देखना है. सो 4.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.60. ओके, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. ओके, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ yz. सो yz का कोरिलेशन कितना है, yz का दैट इज 0.20. ओके, सो 0.20. मे बी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आप तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन उतना है नहीं, इट्स वेरी इजी. बिकॉज व्हेन आई वाज लर्निंग फर्स्ट टाइम, so I was feeling like that very lengthy formula is this, it is, but now I'm very comfortable with this. Okay, so first time कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन इतना है नहीं, easy है. चलो अभी कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो लाइन वाइज पहले करेंगे. 3.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25. ओके, हम लोग का आया इतना, इसका हम लोग को करना है स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर करना है, दैट इज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू स्क्वायर कर रहे हैं. हाँ, सो 0.64. ओके, प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.6. ओके, स्क्वायर यानी कि क्या डबल करते हैं ना, सो हम लोग मल्टीप्लाइड बाय और इज इक्वल टू 7.29. ओके, प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 स्क्वायर करना है, सो इज इक्वल टू करेंगे. सो जो आया है मैं जैसे कि वैसे कॉपी कर रही हूँ, राउंड ऑफ करके लिया तो भी कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन मैं जस्ट लिख रही हूँ ऐसे ही, जो आया है वो वैसे के वैसा. ओके, एक्चुअली 5 डेसिमल 6 डेसिमल लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आने के लिए मैंने जस्ट लिख के रखा है. ओके, सो ये जो 3 वैल्यू है फर्स्ट लाइन का वो हो चुका है. देन प्लस का मार्क, राइट. आपको चाहिए तो इधर भी आप लोग स्टेप वाइज लिख सकते हो, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन में सब वैल्यूज़ लिख सकते हो. ओके, सो अभी इधर 3.20 फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो. ओके, दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन, देन यू कैन कैलकुलेट बाय 2. ओके, सो 3.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, right, multiplied by 2, 1.6. okay, just remember that 1.6, then 4.5 multiplied by 0.6. okay, so इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मार्क, सो मल्टीप्लाइड बाय 1.6. देन इन सबको मल्टीप्लाई करना है 0.30 से. ओके, सो इट इज़ 1.296. नाउ नेक्स्ट वन, first of all this bracket, then multiplied by 2, then remember or else write down that value, then multiplication of this
and multiplication of that value, and finally for final multiplication we will multiply it by 0.5. okay, चलो एक बार अगेन करते. 3.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 1.6 आया. अभी ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, और ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको ये कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0.18. ओके, नाउ लास्ट वन 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.6. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 5.4. आफ्टर दैट 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5.4 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट कोरिलेशन का मल्टीप्लिकेशन, सो 0.243. अभी क्या सिंपली इसका टोटल लेना है सब लोग का. सो 0.64 प्लस 7.29 प्लस 0.0500625. इधर आप लोग ने 2 डेसिमल या फिर 3 डेसिमल किया राउंड ऑफ तो भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आने के लिए मैंने वैसे ही रखा है उसको. ओके, 0.243. ओके, सो ऐसे हम लोग का आंसर आ रहा है. मैं अभी फ़िलहाल आपको 4 डेसिमल लेके दिखाती हूँ. सो हम लोग का आंसर मैं 4 डेसिमल लिख रही हूँ, 9.6996. आप लोग ने डायरेक्टली राउंड ऑफ किया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. अभी ये 4 डेसिमल है, मुझे इसको 2 डेसिमल करना है. मतलब किसी ने 2 डेसिमल लिया होगा तो उसका कैसा आएगा. 9 की वजह से 69 का होगा 70. ओके, सो 9 की वजह से 69 का होगा 70. ओके, तो अभी मुझे ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है. सो मैं क्या करूँगी, 9.70 है राइट, बाहर निकलना है ना, सो ये प्रेस करना है. ओके, सो हम लोग का आ गया 3.11. नॉर्मली 2 डेसिमल फाइनल आंसर राउंड ऑफ करना चाहिए. सो 3.11%, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग का कैसे रहता है, परसेंट में रहता है. सो ये हम लोग का आंसर आ गया 3.11%. अभी हमारे पास आरपी भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी आ गया. अभी सिंपली हम लोग को शार्प रेशो करना हुआ है. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ शार्प रेशो. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पोर्टफोलियो वी विल फाइंड आउट. सो शार्प रेशो फॉर पोर्टफोलियो, आरपी हम लोग ने फाइंड आउट किया था. ओके, लास्ट पेज पे स्टार्टिंग में हम लोग ने कैलकुलेट करके लिखा था ना, 17.315. दिस इज आरपी. So 17.315 is the RP. 17.315 माइनस RF तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, RF 5%. ओके, सो RF का जैसा है वैसे ही लिखना है 5%. आफ्टर दैट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. इतना सब करके जो फाइंड आउट किया 3.11 वो लिखना है. ओके, सो 17.315 माइनस 5 डिवाइड बाय 3.11. ओके, इट कम्स टू 3.95. ओके, राउंड ऑफ करके ये देखो राउंड ऑफ 2 डेसिमल करना है. सो 9 की वजह से क्या हो गया, ये 5 का एक बढ़ गया ना, 6 हो गया. सो 3.96. ओके, 3.96. इन SFM नॉर्मली अच्छे से राउंड ऑफ करते रहना, बिकॉज एक राउंड ऑफ की वजह से क्या होता है ना, आंसर चेंज भी हो सकता है. सो नॉर्मली 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये 95 है तो ये 9 की वजह से 96 होगा क्या, कि या फिर क्या होगा एग्जैक्टली. तो प्लीज़ ये राउंड ऑफ ज़रा अच्छे से देख के करो. ओके, सो वाइल राउंडिंग ऑफ you have to take some precaution, because if here 9 is there, then 1 point will increase, that is because of this 9 it will 96. Instead of 9, if 4 is there, then it will be 95 only. Okay, so like that we have to round off up to 2 decimal places. ओके, आफ्टर दैट फॉर मार्केट हम लोग को करना है, जो क्वेश्चन में रेडीमेड सब दिया हुआ था. जो RM है दैट इज़ निफ्टी का रिटर्न, दैट इज़ 17% ऑलरेडी दिया हुआ है. उसके बाद RF इज़ 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, लास्ट लाइन में सब कुछ दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3. ओके, सी दिस इज़ RM, दिस इज़ RF, दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. ओके, सो 3 हम लोग को रेडीमेड दिया हुआ है सब कुछ. आफ्टर दैट 17 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, इट कम्स टू 4. ओके, सो इट कम्स टू 4. अभी हम लोग को बताना था कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, पोर्टफोलियो की मार्केट का. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ज़्यादा मार्केट का है, सो मार्केट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है. ओके, सो लेट्स चेक द आंसर. सी 3.11
उनका भी वही आया है जो हम लोग ने रिटर्न फाइंड आउट किया, ओके, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड आउट किया, ओके। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, उनका आंसर है। सो इधर हम लोग को मिलेगा, सी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, ओके। उसके बाद उन्होंने टेबल फॉर्म में ये शार्प रेशो फाइंड आउट किया है। सो इनका जो पोर्टफोलियो का ये आया है शार्प रेशो, वो हमारे जितना ही आया है और मार्केट का इतना है, ओके। सो मुझे बताओ बेटर कौन सा है मार्केट का। सो मार्केट हैज़ मार्जिनली आउट परफॉर्म द पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस। सो मार्केट इज़ द बेस्ट, ओके। मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। सो हियर we have completed illustration number 16. now we have to go for illustration number 17, okay। चलो रीड करते हैं क्या दिया हुआ है illustration number 17 में। 4 friends, that is S, T, U and V, have invested equivalent amount of money in 4 different funds in turn with their attitude to risk, okay। so 4 friends है और उन लोग का नेम दिया हुआ है और उन्होंने मार्केट में सॉरी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिफरेंट फंड्स में। और कौन ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करेगा, कौन कम रिस्क लेना पसंद करेगा, ये सब दिया हुआ है, ओके। सो एस प्रेफर टू प्ले एग्रेसिव फंड, ओके, एंड इज कीन ऑन इक्विटी फंड्स, ओके। सो एस जो ये पर्सन है उसने पूरा का पूरा 100% इक्विटी फंड में लगा हुआ है, ओके। सी नीचे हम लोग को टेबल में भी बताया है कि 100% इक्विटी में जो लगा रहा है उसका जो फंड है उसका नाम है मनी मल्टीप्लायर फंड, ओके। सो उसका जो रिटर्न है वो भी दिया हुआ है और उसका जो बीटा फैक्टर है वो भी दिया हुआ है, ओके। सो बीटा फैक्टर भी दिया हुआ है। आफ्टर दैट टी moderately aggressive with a desire to invest up to 50% of funds in equity, okay। सो ये जो टी नाम का एक फ्रेंड है उसका वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। सो ही इज़ जस्ट इन्वेस्टिंग 50% इन द इक्विटी एंड ऑब्वियसली 50% इन द इक्विटी देन 50% इन द डेट फंड। नॉर्मली डेट फंड्स आर सिक्योर्ड फंड्स, सो उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि उसमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। सो इसीलिए उसने क्या किया, 50% इक्विटी में किया और 50% डेट में किया, ओके। सो ये क्या है, बेसिकली एस का इन्फॉर्मेशन है, ये अपना टी का इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस ग्रोथ फंड है उसका नाम, रिटर्न और बीटा फैक्टर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हाँ इधर वेयर एज यू डज नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग बियॉन्ड द 20% इन इक्विटी। यू जो है उसको लग रहा है बहुत रिस्क है इक्विटी में, सो वो क्या कर रहा है 20% इक्विटी में और 80% डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। सो उसका जो फंड है उसका नाम है सेफ मनी फंड, ओके। ये सब परसेंट के हिसाब से ही हम लोग को सब नाम दिया हुआ है, ओके। उसका रिटर्न और बीटा फैक्टर दिया हुआ है, ओके। अभी 4 फ्रेंड्स थे उसमें से एस टी यू का तो हो गया है, सी एस का, टी का और यू का, बचा कौन है, वी का। अभी वी का क्या बोल रहे हैं, वी हावेवर रिलाइज मोर ऑन मूवमेंट ऑफ मार्केट। सो ये जो वी है उसको लगता है कि मार्केट के हिसाब से जाना चाहिए, ओके। सो एंड प्रेफर्स एनी फंड विच रेप्लिकेट द मार्केट पोर्टफोलियो। तो वो क्या सोच रहा है कि मार्केट पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा, ओके। सो मार्केट पे वो भरोसा करता है। सो ये जो वी का जो भी कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट ओनली। चलो आगे क्या दिया हुआ है, अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या कैलकुलेट करना, ओके। सो दे आर गिविंग द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। if the market return was 16%, so market return, it means this is RM. After that risk free return is measured at 7%, it means this is RF. After that which of 4 funds were rewarded better per unit of risk taken, okay। normally rewarded better, reward ऐसा कुछ अगर वर्ड आता है तो इधर हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को आएगा दैट इज ट्रेनर रेशो, ओके, या फिर ट्रेनर मेजर, ट्रेनर इंडेक्स, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, बट नेम इज ट्रेनर रेशो, ओके। जैसे शार्प रेशो हम लोग ने सीखा वैसे ये क्वेश्चन में हम लोग को सीखना है ट्रेनर रेशो। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है, एक थोड़ा सा फर्क होता है, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि शार्प रेशो में क्या क्या लगता है और ट्रेनर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ओके। सो बेसिकली RM is given, RF is given and here returns are given for that particular portfolio and here beta factor is given, okay। so इसका फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सी अगर शार्प रेशो रहता तो नाम तो लिखा होता शार्प रेशो कैलकुलेट करो, लेकिन शार्प रेशो के लिए क्या क्या लगता है हमारे पास मार्केट के लिए, RM है, RF है
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट लगता है, राइट। RM और RF तो दिया है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ नहीं है, ओके। और फॉर पोर्टफोलियो के लिए RP चाहिए, यानी कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, रिटर्न का लिस्ट दिया है ना 3 जन का, सो रिटर्न का लिस्ट इज गिवन, सो RP वी आर हैविंग, RF वी आर हैविंग, बट वी डोंट हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आप बोलेंगे कि कैलकुलेट तो कर सकते हैं हम लोग ने अभी सीखा, लेकिन उसके लिए कोरिलेशन है क्या अपने पास? So correlation we don't have, okay, so we cannot calculate standard deviation of portfolio in this question because we don't have correlation information, okay. So there is no way to calculate Sharpe ratio. सो ऑब्वियसली शार्प रेशो अगर नहीं कर सकते तो क्या हम लोग को करना पड़ेगा? अभी ट्रेनर रेशो करना पड़ेगा, ओके। सो while reading the question you can understand that if name is not mentioned in the question that which ratio is we should calculate, so we can understand by the given information, because given information में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होता तो फिर हम लोग शार्प रेशो फाइंड आउट करते, लेकिन दिया हुआ ही नहीं है ना स्टैंडर्ड रेशो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अभी ट्रेनर पे जाना पड़ेगा, ओके। सो ट्रेनर रेशो बेसिकली रिवॉर्डेड ऐसा अगर वर्ड दिख रहा है, सो नॉर्मली वो क्या होता है? ट्रेनर रेशो रहता है। सो ट्रेनर रेशो फॉर मार्केट है, ऊपर का सब सेम है, RM माइनस RF, उधर भी था इधर भी है, बचा क्या है? नीचे का पार्ट, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आता है शार्प वाले में, इधर बीटा ऑफ मार्केट आता है, ओके। उसके बाद पोर्टफोलियो में भी सेम, RP माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आता था उधर, ओके, इधर क्या आता है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आता है, राइट। सो इधर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लेना है, जस्ट ये डिवीजन वाला जो पार्ट है उसमें फ़र्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे बीटा आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे बीटा आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। ट्रेनर रेशो का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका निकालना है, पहला फ्रेंड है S का, सो फिर S का करेंगे, देन T का करेंगे, देन U का करेंगे, और V का जो है उसका जो पोर्टफोलियो का नाम है उसको बोलेंगे मार्केट पोर्टफोलियो, बिकॉज V जो है वो बोल रहा है कि मैं मार्केट के हिसाब से ही करूँगा, सो दैट इज़ मार्केट पोर्टफोलियो, ओके। बाकी इन लोग का फंड शॉर्ट में लिखा हुआ है, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर फंड, देन बैलेंस ग्रोथ फंड, एंड देन सेफ मनी फंड, ओके। जो स्टार्टिंग में हम लोग को दिया हुआ था ना नाम, ये सब नाम वो हम लोग ने शॉर्ट में लिखा हुआ है। फटाफट से हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। रिटर्न का कॉलम दिया हुआ है C, इधर रिटर्न का कॉलम है, इधर बीटा फैक्टर्स है, और इधर हम लोग को RM और RF का इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है। C ये RM है और ये RF है, ठीक है। चलो फटाफट से फिल करते हैं। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ S वाले का 23.50 माइनस RF का 7%, ओके, दैट इज 7, डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये जो S वाला है उसका पोर्टफोलियो का बीटा है 1.80, ओके, 1.80। अभी आपको लगेगा कि इधर भी अलग अलग फंड है ना, तो हम लोग को सबको मिला के पोर्टफोलियो कहना है क्या? तो ऐसा नहीं है, 4 अलग फ्रेंड्स है, उन लोग ने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो हर एक फ्रेंड का एक अलग पोर्टफोलियो बनेगा, ओके। एक ही पर्सन ने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है तो उसको सबको मिला के हम लोग पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, लेकिन ये एक पर्सन नहीं है, देयर आर 4 friends, so collectively we cannot call it as a portfolio because every friend has a different portfolio, okay, so don't mix up the concept। ये फ्रेंड का अलग पोर्टफोलियो जिसका नाम ये बनेगा, ये फ्रेंड का ये बनेगा, ऐसा, ओके। सो U का बनेगा ये नाम, और V का मार्केट पोर्टफोलियो के हिसाब से करना है। सो बेसिकली वी हैव फिल द इन्फॉर्मेशन, नाउ वी विल कैलकुलेट। नॉर्मली वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके। सो डिवाइड करेंगे तो अब हम लोग का इतना आ गया, तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करो, 9.17, ओके, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। आफ्टर दैट सेकेंड फ्रेंड जो है T का, उसका करेंगे हम लोग। सो रिटर्न ही 16.50, ओके, माइनस अपना RF 7 है और बीटा है 1.25, ओके, 1.25, 16.5 माइनस 7 डिवाइड बाय 1.25, ओके, सो 7.6, ओके। आफ्टर दैट दैट इज़ U वाला, U का है रिटर्न 12.50 माइनस RF इज 7 एंड बीटा फैक्टर इज 0.60, ओके। सो
सो बीटा फैक्टर इज गिवन 12.5 माइनस 7 डिवाइड बाय 0.6. ओके, सो हम लोग का सेम आया है 9.17. ओके, 9.17. आफ्टर दैट मार्केट पोर्टफोलियो. अभी मार्केट में हम लोग को मार्केट का है. ओके, सो ट्रेनर में भी पोर्टफोलियो और मार्केट ऐसा दो फॉर्मूला आता है. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड फॉर पोर्टफोलियोज. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर मार्केट. सो आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा ऑफ मार्केट. ओके, सो आर एम माइनस आर एफ. ओके, आर एम क्वेश्चन में दिया हुआ है 16, आर एफ 7 है और बीटा ऑफ मार्केट हमेशा 1 रहता है. ओके, सो 16 माइनस 7 डिवाइड बाय 1 इट इज़ 9. ओके, इट इज़ 9. सो अभी हम लोग को रैंकिंग करके बताना है कि कौन सा वाला बेटर है, कौन सा वाला नहीं है. ओके, सो सबसे ज़्यादा इन दोनों का है. ओके, सो फर्स्ट रैंक एंड अगेन फर्स्ट रैंक. ओके, दोनों का सेम है. उसके बाद इसका सेकेंड रैंक एंड दिस इज़ थर्ड. ओके, सो दिस इज़ थर्ड. सो बेस्ट वाले कौन से, ये दोनों बेस्ट है. उसके बाद सेकंड नंबर पे है मार्केट वाला और थर्ड नंबर पे ये लास्ट वाला. ओके, सो ऐसे हम लोग को करना है. सो लेट्स चेक द आंसर सही है कि नहीं है. ओके, सो 9.17, 7.6, 9.17 और 9%. ओके, सो रैंकिंग भी हम लोग का करेक्ट है. ओके, बाय द वे मुझे एक बात इधर बतानी है कि इधर तो ऑब्वियसली परसेंट तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बीटा से डिवाइड कर रहे हैं. सो बीटा को तो परसेंट नहीं रहता है ना. सो आंसर है जो उसको परसेंट नहीं लिखना है. बट शार्प रेशो में वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन परसेंट में रहती है. फिर भी बुक में किधर भी उसको परसेंट नहीं लिखा है. मे बी ये रेशो है ना, ट्रेनर रेशो और शार्प रेशो, इसी की वजह से लिखा नहीं होगा. सो ये जो ट्रेनर रेशो और शार्प रेशो का आंसर आएगा उसको परसेंट मत लिखो. ओके, पहले दो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में और 16 में. 16 में भी मैंने लिखा हुआ था. सो प्लीज़ आप लोग मत लिखो. मैंने अभी जस्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि परसेंटेज नहीं लिखना है शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो में. ओके, सो डोंट राइट परसेंटेज. बाकी अदर कैलकुलेशन जो हम लोग ने किया वो एग्जैक्ट सेम है, बट परसेंटेज मत लिखो. ओके, सी इधर क्वेश्चन नंबर 16 में इधर भी सब जगह पे हम लोग ने लिखा था जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे. लेकिन किधर भी शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो के आंसर को परसेंटेज मत लिखो. वैसे देखा जाए तो शार्प रेशो में सब इन्फॉर्मेशन परसेंट वाला ही रहता है. सो लिखा तो भी इतना कुछ इशू नहीं है, बट दैट इज़ रेशो. सो दैट्स वाई डोंट राइट, सो दैट हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो ये कंसिडर करो कि शार्प रेशो और ट्रेनर में तो ऑब्वियसली परसेंट में आंसर आएगा नहीं क्योंकि बीटा से हम लोग डिवाइड करें और बीटा परसेंटेज में तो नहीं होता है ना. सो इसीलिए आंसर ट्रेनर का तो नहीं आएगा परसेंट में, लेकिन शार्प का भी परसेंट में मत लिखो. ओके, सो शार्प रेशो ट्रेनर रेशो के आंसर को कुछ भी नहीं लिखना है. जो आएगा बस उतना ही हम लोग को लिख के रखना है. ओके, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 17 का सब कुछ कैलकुलेट करके और उसका रैंकिंग करके हुआ है. ओके, so here we have completed illustration number 17. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching friends.